Good morning, students. Welcome back in our today's English class. Our today's class is about future continuous tense. Students, हमने future tense पहले ही देख लिया था. तो future tense मतलब क्या? तो जो एक्शन हम फ्यूचर में करने वाले हैं उसको हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है? तो वहाँ पर हम कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं? टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, day after tomorrow, after. These are the words which indicates that the action will perform in future. अब हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मतलब क्या? तो जो एक्शन फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगी उसको हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. अब उसको कैसे हम लिखते हैं? विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, या तो फिर इज, आर, एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. दिस इज द रूल दैट हाउ वी विल राइट द वर्ब इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ओके, so students, now we will read more something about future continuous tense. So students, now open your learning series book and open page number 47. Okay. So all of you opened. Write your name here. Write here today's date. Future continuous tense. Number 1. The verb used to show an action which will continue to occur for some time at some point in future. Number 2. The future continuous tense is written in this way: will plus be plus verb plus ing, is, am, are plus going to plus verb. Some examples they have given here. The teacher will be taking us to the picnic on Saturday. तो स्टूडेंट्स हमारा रूल आया था कि will, उसके बाद be, फिर verb और उसके पीछे ing. दूसरा, आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड मदर इन वैकेशंस. आया था ना कि इज, आर, एम प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब. ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज. Fill in the blanks with the future continuous tense of the verbs given in brackets. स्टूडेंट्स हमें ये फॉर्म में ये ब्लैंक्स लिखनी है: विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. सो नंबर 1 इज आई डैश इन द इवनिंग, और ब्रैकेट में आपको क्या वर्ब दिया है? स्विम. क्या वर्ब दिया है? स्विम. तो सबसे पहले आई विल बी स्विमिंग इन द इवनिंग. तो रूल के हिसाब से हो गया विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. स्टूडेंट्स, आई डोंट हैव मच स्पेस, सो आई हैव रिटन here. You have to write in this blank only. Okay, so students, our answer is I will be swimming in the evening. Mother dash dinner when we reach home. अब यहाँ पर आपको कौन सा वर्ब दिया है? कुक. तो स्टूडेंट्स, एज पर द रूल मदर विल be cooking. Mother will be cooking dinner when we reach home. Next, number 3. The guest dash soon. The guest dash soon. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर कौन सा वर्ब दिया है? अराइव. कौन सा वर्ब दिया है? अराइव. तो द गेस्ट
will be arriving soon. The guest will be arriving soon. Number 4, our school dash kite festival next week. Our school dash kite festival next week. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर कौन सा वर्ब दिया है? सेलिब्रेट. कौन सा वर्ब दिया है? सेलिब्रेट. सो अवर आंसर इज अवर स्कूल विल बी celebrating. Our school will be celebrating kite festival next week. Once again, our school will be celebrating kite festival next week. Next, Rajan dash at the bus stop. Rajan dash at the bus stop. स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में कौन सा वर्ब दिया है? वेट. कौन सा वर्ब दिया है? वेट. तो उसका आंसर क्या होगा? राजन विल बी वेटिंग. राजन will be waiting at the bus stop. Next, number 6, Simi dash the Sunday with her grandparents. Simi dash the Sunday with her grandparents. So students, which verb we have given? Spend. तो क्या आंसर होगा? Simi will be spending with her grandparents. Simi will be spending the Sunday with her grandparents. Next, number 7, Hian dash for his test in the afternoon. Hian dash for his test in the afternoon. स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर कौन सा वर्ब दिया है? स्टडी. तो क्या आंसर होगा? विल बी स्टडिंग. हियान will be studying for his test in the afternoon. Last, number 8, Prisha dash Mumbai on Monday. Prisha dash Mumbai on Monday. स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर कौन सा वर्ब दिया है? गो. तो क्या आंसर होगा? will be going. Krisha will be going Mumbai on Monday. ओके, समझ में आया? ओके, now moving to next question. Fill in the blanks with the going to future form of the verb given in brackets. तो स्टूडेंट्स, उसमें हमारा क्या रूल था? गोइंग टू वाला, इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब. अगर प्लूरल होगा तो आर आएगा, सिंगुलर नाउन होगा तो इज आएगा, और आई होगा तो एम आएगा. तो एम इज आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब. नाउ नंबर 1, the students dash teachers day in a grand manner. The students dash teachers day in a grand manner. So students, हमको यहाँ पर वर्ब दिया है सेलिब्रेट. तो स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, तो स्टूडेंट्स आर गोइंग टू celebrate. Okay, the students are going to celebrate Teachers' Day in a grand manner.
स्टूडेंट्स आपको आंसर यही ब्लैंक में लिखना है, मैं यहाँ पर नहीं लिख सकती हूँ इसलिए मैंने नीचे लिखा है। ओके, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू सेलिब्रेट टीचर्स डे इन अ ग्रैंड मैनर। नंबर 2, फादर एंड अंकल डैश फॉर नेपाल नेक्स्ट मंथ। फादर एंड अंकल डैश फॉर नेपाल नेक्स्ट मंथ। आपको यहाँ पर दिया है लीव। अब फादर एंड अंकल यानी कि 2 पर्सन हुए, 2 लोग हुए, तो क्या आएगा? येस, गुड, आर। तो फादर एंड अंकल आर गोइंग टू लीव for Nepal next month. Father and uncle are going to leave for Nepal next month. Number 3, teacher dash a test tomorrow. Teacher dash a test tomorrow. और ब्रैकेट में हमें कौन सा वर्ब दिया है? गिव। कौन सा वर्ब दिया है? गिव। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा? टीचर। नाउ टीचर इज सिंगुलर नाउन, सो टीचर इज गोइंग टू गिव अ टेस्ट टुमारो। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या हो गया? टीचर इज गोइंग टू गिव अ टेस्ट टुमारो। नेक्स्ट नंबर 4, राधा डैश टू प्ले द पियानो। राधा डैश टू प्ले अ पियानो। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कौन सा वर्ब दिया है? लर्न। कौन सा वर्ब दिया है? लर्न। अब राधा एक लड़के की बात है तो वो सिंगुलर नाउन हुआ, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? इज। राधा इज गोइंग टू लर्न टू प्ले द पियानो। राधा इज गोइंग टू लर्न टू प्ले द पियानो। नेक्स्ट नंबर 5, our school dash an exhibition this term. Our school dash an exhibition this term. ब्रैकेट में आपको दिया है होल्ड, तो क्या होगा? our school is going to hold an exhibition this term. Our school is going to hold an exhibition this term. Okay students, number 6, we dash to a new house next month. अब आपको यहाँ पर कौन सा वर्ब दिया है? मूव। नाउ वी, तो वी के पीछे क्या आएगा? आर। वी आर गोइंग to move to a new house next month. क्या आंसर होगा हमारा? We are going to move to a new house next month. Okay students, now turn your page and come to page number 48. Okay students, all of you are ready now? The reciting task is about to arrange the jumble words to make a meaningful sentence. Students, ये से जम्बल वर्ड्स को हमें अरेंज करना है और उसका सेंटेंस बनाना है। ओके, सो नंबर 1 इज़ टीम कैरिंग इज़ अ बैट। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई भी सेंटेंस बनाए तो जनरली क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको हम आगे ले लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर जो वर्ब रखेंगे और लास्ट में हम प्रेडिकेट रखते हैं। तो टीम कैरिंग इज़ अ बैट,
तो यहाँ पर किसके बारे में सेंटेंस लिखा है? टीम के बारे में। तो दैट इज द सब्जेक्ट, तो वो पहले आता है। तो टीम, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इज। वर्ब क्या है? कैरिंग। टीम इज कैरिंग, क्या कैरी कर रहा है? अ बैट। टीम इज कैरिंग अ बैट। और स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना है कि जब सेंटेंस खत्म हो जाए तो उसके पीछे हमें फुल स्टॉप लगाना है। ओके, सो अवर फर्स्ट सेंटेंस इज टीम इज कैरिंग अ बैट। ओके, नाउ नंबर 2, हैव आई पेन्स टू। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई। हेल्पिंग वर्ब हैव। पेन्स, कितनी पेन्स? 2। तो आई हैव 2 पेन्स। क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? आई हैव 2 पेन्स और पीछे फुल स्टॉप। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉल टेलीफोन, दिस फॉर इज यू। कॉल टेलीफोन, दिस फॉर इज यू। तो यहाँ पर क्या है? दिस टेलीफोन कॉल इज फॉर यू। क्या आंसर होगा? दिस टेलीफोन कॉल इज फॉर यू। ओके, नेक्स्ट, बर्ड दैट प्रॉपरली फ्लाई कैनॉट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दैट बर्ड इज सब्जेक्ट, तो दैट बर्ड कैनॉट फ्लाई properly. That bird cannot fly properly. Next, number 5, completed they the project themselves by. Completed they the project themselves by. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा they completed the project, they completed the project by themselves. They completed the project by themselves. Okay, next, have we to do our work ourselves. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा we have to do our work ourselves. क्या होगा? we have to do our work ourselves. Again, we have to do our work ourselves. Okay, next, number 7, man is this artist well known. So this man is a well known artist. इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? दिस मैन इज अ वेल नोन आर्टिस्ट.
once again I am repeating, this man is a well known artist. Okay, next, number 8, live in a big Mrs. and Mr. Sharma house. Live in a big Mrs. and Mr. Sharma house. स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा मिसिस एंड मिस्टर शर्मा live in a big house. Mrs. and Mr. Sharma live in a big house. क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स इसका? मिसिस एंड मिस्टर शर्मा लिव इन अ बिग हाउस. नेक्स्ट, नंबर 9, book this is of full pictures lovely. Book this is of full pictures lovely. तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा this book is full of lovely pictures. This book is full of lovely pictures. Missed Arjun the bus school he because got late up. तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा अर्जुन मिस्ड अर्जुन missed the school bus. Arjun missed the school bus because he got up late. Arjun missed the school bus because he got up late. And पीछे full stop. Okay students, now we end up here this class. We will meet soon. Till that, goodbye and take care.